ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بار کی مدھم روشنی، نیلے اور سرخ بلبوں کی چمک اور تیز موسیقی کی گونج میں کلب کی فضا ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کا کھیل جاری تھا۔ فضا میں شراب کی تیز بو، سگریٹ کا دھواں اور مصنوعی خوشبوئیں آپس میں گڈ مڈ ہو کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ نیم برہنہ لباس پہنے لڑکیاں بے فکری سے ناچ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ موجود لڑکے ان کے ساتھ جھومتے ہوئے کہے لگا رہے تھے۔ کہیں کوئی زور زور سے ہنسی کی آواز نکال رہا تھا تو کہیں کوئی گوشہ خاموشی سے سر جھکائے بوتل سے گھونٹ لے رہا تھا۔ ایسے میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی جو سر پر حجاب اوڑے ہلکے گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہنے تھی، جھجکتی سہمتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جیسے ہر چہرے کو خوف کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدم آہستہ آہستہ رکھے، جیسے ہر قدم اس کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ کر رہا ہو۔ وہ بار کے ماحول سے مکمل طور پر اجنبی لگ رہی تھی، جسے کسی اور دنیا سے اچانک اس دنیا میں آن پہنچی ہو۔ ہر نگاہ جو اس پر پڑتی حیرت سے رک جاتی، کوئی سرگوشی کرتا، کوئی آنکھ بچا کر ہنستا۔ مائرہ کے ہاتھ بے اختیار دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں چاروں طرف تیزی سے گھوم رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں یا کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے ایک کاؤنٹر کے قریب پہنچی جہاں ایک ویٹر گلاس سجانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور ہچکچاتی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، یہاں آلیان شاہ کہاں ملیں گے؟ ویٹر نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر آنکھیں سکیڑتے بولا، آپ کون ہیں؟ کیا کام ہے آپ کو آلیان شاہ سے؟ مائرہ کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ چند ثانیے اس نے سوچا، پھر گھبرا کر بولی، مجھے ایک ڈیل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ویٹر نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ سر، یہاں ایک لڑکی آئی ہے، کہتی ہے آلیان شاہ سے ڈیل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی سر، ابھی پوچھتا ہوں۔ اس نے موبائل کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام؟ مائرہ نے بے ساختہ گردن جھکا لی، جیسے کچھ دیر اپنے اندر ہمت سمیٹ رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، مائرہ اقبال۔ نام سنتے ہی ویٹر کی نظریں بدل گئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر فون بند کرتے نرمی سے بولا، اوپر والے روم میں تشریف لے جائیں میم، سیڑھیاں دائیں جانب ہیں، آخری کمرہ۔ مائرہ نے سر ہلایا، شکریہ بھی نہ کہا، صرف قدم بڑھا دیے۔ دل جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف، بے یقینی اور ایک انجام انجان کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدم کانپ رہے تھے، جیسے ہر سیڑھی پر اس کا ضمیر کوئی سوال اٹھا رہا ہو۔ دروازے کے پیچھے کیا ہوگا؟ آلیان شاہ کیسا ہوگا؟ وہ یہ سب نہیں جانتی تھی، صرف اتنا جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے اور وہ اگلے شخص کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے والی ہے۔ کمرے کا دروازہ اس کے سامنے خاموشی سے ایستادہ تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی ناقابل بیان طوفان کی زد میں تھی۔ مائرہ کی انگلیاں لرزتی ہوئی مٹھی میں بند ہو گئی۔ سانس دھیرے دھیرے مگر بے ترتیب چل رہا تھا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موندی، جسے خود کو آخری بار حوصلہ دے رہی ہو، پھر قدم آگے بڑھے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ کمرہ وسیع، قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ مدھم سی خوشبو، روشنی کی نفیس تقسیم اور دیواروں پر جدید آرٹ کے نمونے، مگر ان سب کے بیچ سب سے نمایاں وہ وجود تھا جو سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے براجمان تھا۔ آلیان شاہ، کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر سرد غرور اور آنکھوں میں بے نیازی کی گہری جھلک۔ وہ کسی سلطان کی مانند بیٹھا تھا، جیسے ہر آنے والا جھکنے کا پابند ہو، مگر مائرہ جھکی نہیں۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس پر پڑی، بنا ایک پل ضائع کیے قدم تیزی سے اٹھاتے وہ اس کے قریب پہنچی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ دیا۔ اس کے گارڈز فوراً آگے بڑھے تھے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو وہیں تھمنے کا بول دیا۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند دھاڑی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز میں درد، غصہ اور بے بسی یکجا ہو کر دھاڑ میں بدل گئی۔ آلیان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، غافل سا مگر فوری طور پر خود پر قابو پاتے۔ اس نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔
पागल हो गई हो? क्या बदतमीजी है ये? उसकी आवाज में हैरत और गुस्सा दोनों थे। लड़की की जगह अगर कोई और होता अब तक जमीन के अंदर होता। उसके चेहरे पर मौजूद हिजाब की वजह से उसने अब तक इस पर हाथ नहीं उठाया था, वरना कोई बईद नहीं था कि वो लड़की का भी लिहाज ना करता। मायरा के आंसू बहने लगे, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, आग सुलग रही थी। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी आलियान शाह, अगर तुमने मेरे भाई की तरफ गलत निगाह उठाई। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। उसकी आवाज कमरे की खामोश दीवारों से टकराकर पलट रही थी। आंखें लाल, चेहरा कांपता हुआ और दिल जैसे इंतकाम की आग में दहक रहा था। आलियान के चेहरे पर अब हैरत आ चुकी थी। वो चंद कदम पीछे हटा और सख्त लहजे में बोला, कौन सा भाई? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? और ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मायरा ने रोते हुए मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, इसी लहजे में बात की जाती है तुम जैसे घटिया और कमजोर इंसान से, जिसकी नजरों में सिर्फ हविस है और जिसका दिल जमीर से खाली हो चुका है। तुम्हें इतना एहसास नहीं कि वो अंडर 18 है, उसके बावजूद तुमने उस मासूम के साथ इतना घनौना खेल खेला। आलिया ने उसके चेहरे पर निगाह दौड़ाई। वहां खौफ नहीं था, सिर्फ शिद्दत, सिर्फ गैरत और सिर्फ एक बहन का बेकाबू तहफ्फुज का जज्बा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा और गंभीर लहजे में बोला, नाम क्या है तुम्हारे भाई का और आई कहां से हो तुम? अब के वो थोड़ा संजीदगी से बोला था, मामला उसे समझ आ रहा था। ये सवाल जैसे और भी कई राज खोलने को था, लेकिन मायरा की आंखों में मजीद लावा भड़क उठा। उसने आगे बढ़कर एक कदम और उठाया, जैसे अपने लफ्जों का वजन बढ़ा रही हो। आवाज में ना अब सिर्फ धमकी थी, बल्कि धड़कते दिल का दर्द भी छुपा हुआ था। कहीं से भी आई हूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो गुर्राई, अगर तुमने कबीर की तरफ नजर उठाकर भी देखा या उसे किसी गंदे काम में शामिल करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये नहीं देखूंगी कि तुम कौन हो और कहां से हो, क्या नाम है तुम्हारा, या तुम्हें कितने लोग जानते हैं। बस एक बात याद रखना आलियान शाह, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे मेरा भाई बहुत अजीज है, उसकी खातिर मैं किसी का भी कत्ल कर दूंगी और एक लम्हे के लिए भी नहीं डरूंगी। वो महज 22 साल की थी, लेकिन धमकियां एक मर्द की मानंद दे रही थी। उसके चेहरे पर लम्हा भर को लर्जिश आई, लेकिन आवाज में जरा सा भी शक या कमजोरी नहीं थी। हर लफ्ज तेज छुरी की मानंद कमरे की फिजा को चीरता चला गया। आलियान का चेहरा पल भर को सुन हो गया, जैसे वो ये शिद्दत, ये गैर मुतवक्की जुर्रत कभी अपनी जिंदगी में देख ना पाया हो। मायरा ने एक आखिरी सख्त निगाह उस पर डाली, जैसे ये वार्निंग उसके दिल पर कुंदा करना चाहती हो। फिर पलटी, ना उसकी नजर झुकी ना कदम रुके। वो एक आंधी की मानंद वापस मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में अब घबराहट नहीं थी, सिर्फ गुस्से की गूंज थी। वो लड़की जो चंद लम्हे कबल इस क्लब में सहम कर दाखिल हुई थी, अब एक तूफान की सूरत में वहां से निकल रही थी। दरवाजा जोर से खुलकर दीवार से जा लगा और मायरा बगैर मुड़े, बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। आलियान वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी नादीदा तमांचे ने उसे मफलूज कर दिया हो। उसकी आंखों में हैरत, सोच और कुछ ना समझ आने वाली उलझन तैरने लगी। जिस अंदाज में वो आई थी, जिस बेबाकी से बोली और जिस वकार के साथ गई, वो लम्हा, वो लड़की अब उसके जहन में गूंजने लगी थी। कमरा फिर से खामोश हो गया, मगर इस खामोशी में अब सिर्फ सकूत नहीं था, कुछ बदल चुका था। शायद आलियान शाह के लिए, शायद मायरा के लिए, या शायद आने वाले दिनों की एक नई कहानी के लिए। आलियान शाह अपनी जगह पर चंद लम्हे वैसे ही साकित खड़ा रहा, जैसे उस पर किसी ने अनदेखे जलजले का हमला कर दिया हो। उसकी मुट्ठी बंद थी, होंठ सख्ती से भींचे हुए और आंखें किसी गहरी सोच में उलझी हुई। कमरे में मौजूद बाकी अफराद, उसके करीबी साथी, गार्ड्स और मुशीरान सब अपनी जगह पर खामोश खड़े थे, जैसे उनमें से किसी को भी जुर्रत ना हो कि आलियान से कुछ पूछें या उसकी नजरों से आंख मिला सके। अचानक जैसे उसके अंदर जमा गुस्से को किसी ने दहका दिया हो, वो फट पड़ा। उसने सामने रखा शीशे का सेंटर टेबल एक ही झटके में अपने पांव की ठोकर से उल्टा दिया। कीमती गुलदान जमीन पर गिरा और रेजा रेजा हो गया। करीब रखा लैंप उसके हाथों की जद में आया, एक लम्हे में दीवार से टकरा कर बिखर गया। वो हर उस चीज को
توڑ رہا تھا جو اس کے ارد گرد نظر آ رہی تھی۔ اس کے غصے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پورے کمرے کو ہلا کر رکھ گئی۔ سب لوگ دم سادے کھڑے تھے، کوئی بھی قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آلیان کی آنکھوں میں اب وہی چنگاریاں تھیں جو کسی زخم خوردہ شیر کی نگاہوں میں نظر آتی ہیں۔ چند لمحے اس نے تیز سانسیں لیں اور پھر جیسے فیصلہ کر چکا ہو وہ قدم اٹھاتا بڑھا، دروازے کی طرف گیا اور دھڑاک سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بار کلب کی چمکتی دمکتی راہداریوں سے ہوتا وہ تیز قدموں سے پارکنگ لاٹ میں آیا۔ فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی اور سگریٹ کا دھواں گھلا ہوا تھا، لیکن آلیان کے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اس نے میری گریبان کو ہاتھ کیسے لگایا؟ گاڑی کا دروازہ زور سے کھول کر وہ اندر بیٹھا، اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے، چند لمحے آنکھیں بند کی اور پھر غصے سے فون نکالا۔ ایک ہی نمبر ڈائل کیا، پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی سر، کاشی کی آواز آئی جو اس کا سب سے خاص آدمی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بار کلب میں آئی تھی، میرا گریبان پکڑا ہے اور مجھے دھمکی دے کر گئی ہے۔ آلیان کی آواز میں انگارے لپک رہے تھے۔ کاشی، مجھے آج کے آج وہ لڑکی فارم ہاؤس پر چاہیے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر کاشی کی دھیمی نپے تلے انداز میں آواز آئی، سر، وہ کبیر کی بہن ہے جو نیا لڑکا ہے، کل ہی گینگ میں بھرتی ہوا ہے۔ آلیان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ بھاڑ میں گئی گینگ، بھاڑ میں گیا وہ لڑکا، مجھے یہ لڑکی چاہیے، یہ میرا حکم سمجھ لو کاشی۔ اس نے میری انا کو للکارا ہے۔ کاشی کی سانس رکی، پھر محتاط انداز میں بولا، لڑکی ان ٹچ ہے سر، پیسے زیادہ لگیں گے۔ آلیان کی آواز فولادی تھی، بولا ہے نا وہ چاہیے مجھے، پیسے وغیرہ کی فکر چھوڑ دو، وہ میری انا کا سوال بن چکی ہے۔ کاشی نے فوراً جی سر کہتے کال بند کر دی۔ گاڑی کے اندر چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے۔ آلیان شاہ کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھی، مگر ذہن میں صرف ایک چہرہ ابھرا تھا، وہ آنکھیں، وہ غصہ، وہ چیلنج جو مائرہ کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا۔ اب کھیل ذاتی ہو چکا تھا، اور آلیان شاہ جب ذاتیات پر اتر جائے تو وہ کسی حد کا پابند نہیں ہوتا۔ رات کی تاریکی شہر کی گلیوں پر جیسے سیاہ چادر تان چکی تھی۔ مائرہ اکیلی سڑک پر تیز قدموں سے چل رہی تھی، چہرے پر آنسو اور دل میں خوف اور ندامت کا بھاری بوجھ۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور قدم کبھی لڑکھڑاتے کبھی ٹھٹکتے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، میں کیوں گئی؟ مجھے اس آدمی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کبیر، اس کا اکلوتا بھائی جو اب اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا، ماں باپ کے بعد اسی نے اسے تھاما تھا، اس کی دعاؤں کا مرکز، اس کی زندگی کی سب سے بڑی فکر۔ اور اب کبیر بھی ان ہاتھوں میں جا چکا تھا جن سے وہ ہمیشہ دور رہنا چاہتی تھی۔ اسے جیسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ آلیان شاہ، یہ نام سن کر ہی اس کے اندر نفرت کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی، اور اب وہ خود اس کے کمرے تک جا پہنچی تھی۔ پاگل ہو گئی تھی کیا؟ وہاں موجود مردوں کے چہروں پر بے رحمی اور ان کے کندھوں پر لٹکتی بڑی بڑی رائفلز، وہ سب کچھ اسے اب خوف کے ساگر میں دھکیل رہا تھا۔ گلی سنسان تھی، ارد گرد صرف اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی اور دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ مائرہ نے دوپٹے کو اپنے گرد کس کر لپیٹا، دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز سے تیزر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ گلی میں مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک کالی چمچماتی گاڑی اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ بریک کی چیخ جیسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن جواب دینے کی بجائے اگلے ہی لمحے گاڑی کے دونوں دروازے ایک ساتھ کھلے اور سیاہ لباس میں ملبوس دو مرد تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے سیاہ ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوفناک چمک۔ رکو، تم لوگ کون ہو؟ پیچھے ہٹو۔ مائرہ نے خوفزدہ ہو کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز جیسے حلق میں ہی دب گئی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی ان میں سے ایک مرد نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور اس پر کلوروفارم چھڑک کر اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے شخص نے اس کے بازو جکڑ لیے۔
क्लोरोफार्म की तेज बू उसकी सांसों में सरायत करने लगी। दुनिया जैसे घूमने लगी, रोशनी जैसे धुंध में ढलने लगी और फिर उसकी पलकें झुक गई। उसे बेहोश देखकर उनमें से एक आदमी बोला, फटाफट गाड़ी में डालो, देर नहीं होनी चाहिए, काशी का ऑर्डर है, फौरन फार्म हाउस लेकर जाना है। दूसरे ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने जल्दी से मायरा को बाजू में उठाया, गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और दरवाजा बंद कर दिए। गाड़ी खामोशी से गली से निकलकर अंधेरे में गुम हो गई। सड़क पर एक दुपट्टा पड़ा रह गया था, मायरा का, जो भी कुछ लम्हा पहले उसके कंधों पर था, अब तन्हाई में उसके गायब हो जाने की गवाही दे रहा था। दुनिया अपनी चाल पर रवां थी, लेकिन एक लड़की अपनी अना, गैरत और भाई की मोहब्बत की कीमत चुकाकर अब एक अंधेरे खेल का हिस्सा बन चुकी थी। रात की स्याही में लिपटा फार्म हाउस एक सुनसान जंगल की मानंद साकित खड़ा था। चांदनी हल्की हल्की छत पर पड़ रही थी और पोर्च के सतूनों पर नस्ब पीली रोशनी के बल्ब किसी खामोश गवाह की मानंद जल रहे थे। अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आकर पोर्च में रुकी। उसके टायरों की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और दरवाजा एक झटके से खुला। आलियान शाह काले 3 पीस सूट में मलबूस गरूर से सर उठाए बाहर निकला। उसकी आंखों में वही रौनक, वही खुद पर काबू का गरूर, जैसे वो दुनिया को मुट्ठी में लेकर चलता हो। बाहर 2 मुसल्ला गार्ड सर झुकाए उसके मुंतजिर खड़े थे। आलियान की नजरें उन पर पड़ी तो उसने तेज कदमों से उनके जानिब बढ़ते हुए पूछा, लड़की आ गई है? गार्ड्स में से एक ने अदब से जवाब दिया, जी सर, पहुंचा दी गई है, जैसा आपका हुक्म था, हमने उसे आपके कमरे में पहुंचा दिया है। आलियान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर महज गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है। आलियान ने कोई और बात किए बगैर रुख मोड़ा और सीधा मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी जूतों की एड़ियां फर्श पर मखसूस ठक ठक की आवाज पैदा कर रही थी। मरकजी दरवाजा उबूर करके वो अंदर दाखिल हुआ, जहां राहदारी की दीवारों पर लगे कीमती पेंटिंग्स और नरमी से जलते लैंप एक खामोश मगर पुरतईश माहौल का हिस्सा थे। हर कदम जैसे किसी खास मकसद की गवाही दे रहा हो। वो अपने कमरे के सामने पहुंचा, दरवाजे को आहिस्ता से खोला। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजरें सीधी बिस्तर की तरफ गई, जहां मायरा बेहोश पड़ी थी। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। आलियान के कदम वहीं रुक गए और उसकी आंखें मायरा पर जम गई। वही लड़की जो थोड़ी देर पहले क्लब में उसका गिरेबान पकड़कर खड़ी थी, अब बेहिस्सो हरकत उसके बिस्तर पर पड़ी थी, मगर वो मंजर कुछ मुख्तलिफ था। मायरा का चेहरा मुकम्मल सुकून से सजा हुआ था, जैसे किसी पाकीज़ा नींद में हो। उसका दुपट्टा आधा चेहरे पर फैल गया था और उसके गिर्द लिपटे दुपट्टे के किनारे उसकी मासूमियत की गवाह बने थे। उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की मेहमान हो। आलियान की नजरें उसके चेहरे पर जम गई, जैसे वो किसी राज को खोजने की कोशिश कर रहा हो। ये वही लड़की है? उसके अंदर की आवाज ने सवाल किया। उसके अंदर एक लम्हे के लिए एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। वो जो हर किसी को मोम की नाक की तरह मोड़ देता था, आज पहली बार किसी के साकित वजूद के सामने खुद साकित हो गया था। कमरे में कुछ पल खामोशी तारी रही, फिर बगैर कुछ किए या कहे वो पीछे मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसके तसव्वुर से बाहर था। फार्म हाउस की तारीकी एक बार फिर अपने असल में ढल गई, मगर उस रात की खामोशी में वो एक नज़र, एक लम्हा बहुत कुछ बदल चुका था। फजर की अजान की नरम और रूहानी आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर कर अंदर तक रिसाई हासिल की। खिड़की से आती हल्की सी नीली रोशनी ने कमरे के सादा मगर शानदार साजो सामान पर धीमी चमक डाल रखी थी। कमरे के वस्त में रखे वसी और नरम बिस्तर पर मायरा बेखबर सोई हुई थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो, किसी अनजानी थकन से लबरेज। अजान की सदा जैसे उसकी रूह को छू गई हो। उसकी पलकें हल्की हल्की लर्जी, जिस्म में जंबिश हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें खोलने लगी। इब्तिदा में उसे कुछ समझ नहीं आया। कमरे की छत अजनबी थी, इर्द गिर्द का माहौल अजनबी, खामोशी गैर मामूली सी। वो सीधी होकर बैठ गई। उसके जहन में जैसे एक तूफान उठा। सब कुछ, बार क्लब, आलियान शाह, वो गिरेबान पकड़ना, वो खौफनाक निगाहें, गाड़ी, स्याह कपड़ों वाले लोग, क्लोरोफार्म, सब कुछ एक फिल्म की मानंद उसकी आंखों के सामने घूम गया।
दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। उसने जल्दी से बिस्तर से पैर नीचे उतारे और डगमगाते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत करके उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला बगैर किसी मज़ामत के। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, सामने राहदारी में नीम अंधेरे में एक शख्स नमोदार हुआ। स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस, कामत से गार्ड लगता था। उसने आकर सर झुकाकर अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। मायरा चंद लम्हे उसे देखती रही, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गार्ड ने संजीदा लहजे में कहा, साहब ने बुलाया है आपको। हुक्म था कि जैसे ही आप बेदार हों आपको फौरन बताया जाए। मायरा की सांसें जैसे रुक गईं। आवाज हल्की मगर लरसती हुई निकली। कौन साहब? और मुझे यहां कौन लेकर आया है? गार्ड ने सर अब भी झुकाया हुआ था, नजर तक नहीं उठाई। आलियान शाह साहब, आप सीधा उनके कमरे में चली जाएं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मायरा की रंगत जर्द पड़ गई। आंखों में खौफ और बेयकीनी की झलक थी। उसके हाथ खुद ब खुद कपड़ों की ओढ़नी दुरुस्त करने लगे, जैसे किसी अनजाने खतरे के लिए खुद को तैयार कर रही हो। कदम पे इख्तियार पीछे होने लगे। दिल कह रहा था कि भाग जाए, मगर दिमाग जैसे सुन हो गया था। वो वहीं साकित खड़ी रही। अल्फाज गले में अटक गए। कमरे की दीवारों से टकराई अजान की बाज़गश्त अब भी जहन में गूंज रही थी, लेकिन अब उसकी रूह में सिर्फ एक ही खौफ की गूंज थी। चंद लम्हों तक वो यूं ही साकित खड़ी रही। आंखों से मुसलसल आंसू रवान थे। फिर एक फैसला कुन सांस लेते उसने अपने आंचल को मजबूती से थाम लिया और तेज कदमों से बाहर की जानिब चल पड़ी। उसके हर कदम में एक बेबसी थी, मगर साथ ये तमन्ना भी कि शायद दरवाजे तक पहुंचने से पहले कोई मौजज़ा हो जाए। वो मरकजी दरवाज़ा उबूर करके बागीचे की पथरीली राहगुजर से गुजरी। हर कदम पर खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती रही। आखिरकार वो मेन गेट तक पहुंच गई। वो गेट जो बाहर की दुनिया का दरवाज़ा था, आज़ादी का दरवाज़ा। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, 4 स्याह वर्दियों में मलबूस गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो अचानक रुक गई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसकी आंखों में बेबसी थी और सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे मेरे घर जाना है, रास्ता दीजिए प्लीज, वो कपकपाती आवाज में बोली, जैसे दिल की गहराई से उम्मीद वाबस्ता कर रही हो कि शायद इंसानियत कहीं जाग जाए। एक गार्ड जिसका चेहरा सख्त और सपाट था, उसने संजीदगी से कहा, अगर आपको जाना है तो पहले आप आलियान साहब से मुलाकात करें। उनकी इजाजत के बगैर आप कहीं नहीं जा सकती। बेहतर होगा उनसे बात कर ले। मायरा ने बेयकीनी से गार्ड की बात सुनी। आंखों से आंसू रवान हो गए। आवाज में लर्जिश थी। मेरा भाई कबीर, वो घर पर परेशान हो रहा होगा। खुदा के लिए मुझे जाने दे, मेरी उससे बात भी नहीं हो रही। इस बार दूसरा गार्ड बोला, जिसका अंदाज पहले से भी ज्यादा खुश्क और कतियत से भरा था। हमने आपको बता दिया है बीबी, ये हमारे बस में नहीं। इजाजत के बगैर ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। बेहतर होगा आप वापस चली जाएं, वरना मर्जी आपकी है। ये कहते ही वो तीनों पीठ मोड़कर वापस अपनी जगहों पर खड़े हो गए, जैसे वो कोई पत्थर के मुजस्मे हों, जिन्हें किसी इंसान की हालत, आंखों के आंसू या इल्तिजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरा वहीं साकित खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल जैसे धड़कना भूलने लगा हो। उसके अंदर कहीं कोई शोला बुझ गया था। हिम्मत मर गई थी। चंद लम्हों तक वो बस हवा में घूरती रही और फिर शिकस्त खोदा कदमों से पलटने लगी। हर कदम पर एक आंसू, हर कदम पर एक सिसकी। वो रोती हुई, सहमी हुई, बेबस वापस अंदर की तरफ बढ़ गई, जैसे तकदीर ने उसे उस बेरहम महल का कैदी बना दिया हो, जिसकी दीवारों पर आलियान शाह का नाम लिखा था। कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी, आंखों में नमी और दिल में एक ऐसा बोझ लिए जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। हर सांस के साथ दिल की धड़कन जैसे बढ़ती जा रही थी। उसने होंठ काट कर खुद को थोड़ा संभाला और हिम्मत जमा करके धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। आवाज भारी और पुरसकून मगर हुक्म से भरी हुई थी। उसके कदम खुद ब खुद अंदर की तरफ बढ़ गए, जैसे अब इख्तियार उसके हाथ में नहीं रहा था। वो हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही आलियान शाह सोफे पर बैठा था।
पांव मेज पर रखे, एक हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर वही रौनक भरी सर्द मेहरी और आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। कमरे में फैला सकूत ऐसा था जैसे हवा भी सहम गई हो। मायरा चंद कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। मुझे क्यों अगवा किया है आपने? उसकी आवाज कपकपाती हुई, मगर सवाल वाज़ेह था। मैंने सिर्फ आपसे कहा था कि मेरे भाई से दूर रहें। आपको पता है, एक लड़की अगर पूरी रात घर से बाहर रहे तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है। आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बोलें, क्यों किया? आलियांशा ने एक नजर उस पर डाली, निगाहों में वही बेजारी जैसे किसी मामूली शय को देख रहा हो। उसने लैपटॉप बंद किया और सीधा होकर बैठा, फिर सख्त सर्द लहजे में बोला, ये रोना धोना मेरे सामने मत करो। तुमने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, मेरे गिरेबान को हाथ लगाया, मुझे सबके सामने जलील किया। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लेता? मायरा की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। वो सिसकती हुई बोली, मैंने आपकी कोई इंसल्ट नहीं की थी। मैं सिर्फ एक परेशान बहन थी जो अपने भाई को बचाना चाहती थी। मेरे माँ बाप नहीं है, सिर्फ एक भाई है, और अगर वो भी गलत हाथों में चला गया तो मैं कैसे जी सकूंगी? मैं क्या करूं? उसके लहजे में सच्चाई की तपिश थी, आंखों में वो दुख जो जिंदगी की ठोकरों से आता है। मगर आलियांशा खामोश रहा। उसकी नजरों में लम्हा भर के लिए कुछ नरम सा तासुर उभरा, जैसे कोई पुरानी याद छू गई हो। मगर अगले ही लम्हे वो चेहरा फिर से संजीदगी की चादर ओढ़ चुका था। कमरे में सकूत छा गया। एक तरफ एक बेबस लड़की खड़ी थी जो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, और दूसरी तरफ वो मर्द था जिसकी अना को ललकारा गया था। दोनों के बीच वो फासले थे जिन्हें ना कोई लफ्ज काट सकता था और ना कोई आंसू। कमरे की फिजा बस दस्तूर बोझल थी। दीवारों पर मध्यम रोशनी की अक्स झूल रहे थे, और खामोशी का ये आलम था कि सिर्फ उनके दरमियान की गुफ्तगू ही कमरे में गूंजती महसूस हो रही थी। आलियांशा की नजरें अब भी मायरा पर जमी हुई थी, जिसकी आंखों में अभी तक खौफ, बेबसी और इल्तिजा बैक वक्त लहरा रहे थे। वो अपनी जगह से उठा, चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके लबों पर एक अजीब सा सकूत छाया था, मगर आंखों में वही हुक्म और वही गरूर था। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो, वो धीमे मगर फैसला कुन अंदाज में बोला, तो तुम्हें मेरी कुछ शराइत माननी होंगी। मायरा ने एक झटके से नजरें उठाई। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। मुझे मंजूर है सब शराइत, बस मुझे जाने दें प्लीज, और मेरे भाई से दूर रहें। वो जल्दी से बोली, जैसे उसे डर हो कहीं वो वक्त हाथ से ना निकल जाए। आलियान ने उसकी बात सुनकर एक ठहरी हुई सांस ली, फिर गहरी नजरों से उसे देखा। ये नामुमकिन है, उसने सर्द लहजे में कहा। जब एक शख्स हमारे गैंग में कदम रख लेता है, नाम लिखवा देता है, तो वो वापस नहीं जा सकता। मायरा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो एकदम परेशान होकर बोली, क्या मतलब? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आलिया ने कुछ लम्हे उसकी तरफ खामोशी से देखा, जैसे उसके अंदर कुछ टटोल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई तालीम हासिल करे, किसी शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, कॉलेज जाए, नौकरी करे, तुम्हारे माँ बाप का ख्वाब पूरा करे? मायरा के चेहरे पर हैरत और तासुर एक साथ आया। आपको कैसे मालूम? वो धीरे से बोली, जैसे अल्फाज भी सोच समझ कर निकल रहे हों। आलियान के लबों पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट आई। मुझे सब पता होता है मायरा, तुम्हारा भाई कब स्कूल गया, कहाँ वक्त गुजारता है, तुम कब तक नौकरी करती थी, सब मैं हर चीज जानता हूं। सवाल यह है कि तुम चाहती क्या हो? मायरा ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर हल्की सी हिचकी ली और सरस बात में हिलाया। जी, मैं यही चाहती हूं, मैं कबीर को एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती हूं। आलिया ने नजरें उससे हटाई, चंद कदम पीछे हटा और सोफे पर बैठा। उसने उंगलियों से कनपटी सहलाई और धीरे से बोला, तो फिर तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक ऐसी कुर्बानी जो तुम्हें शायद सारी जिंदगी याद रहे। लेकिन तुम्हारा भाई इस दलदल से बच जाएगा, उसको मैं एक पुरसकून जिंदगी दूंगा, ये वादा है मेरा। मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में सवालों का तूफान था, मगर वो इतना जान गई थी कि अब उसकी किस्मत एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी
जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। कमरे की फिजा में एक गहरी संजीदगी फैली हुई थी। कोने में जलती हल्की सी खुशबूदार मोमबत्ती की रोशनी मध्यम सी चमक दे रही थी। खिड़की से आती रोशनी अब कम होती जा रही थी और कमरे में सिर्फ उन दोनों की मौजूदगी की गूंज बाकी थी। मायरा के दिल की धड़कन तेज थी, उसका वजूद कांप रहा था, मगर वो खुद को संभाले खड़ी थी। आलियांशा कुर्सी पर बैठा उसे खामोश नजरों से देख रहा था। कुछ पल गुजरे, फिर उसने अपनी उंगलियों को मेज पर टिक टिक करते हुए कहा, अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तहफ्फुज़, तुम्हारा भाई, तालीम, इज्जत, सब कुछ। बताओ, मानोगी मेरी शर्त? वो जब कुछ ना बोली तो उसने वही दोबारा लफ्जों को जोड़ा। मायरा ने आंखों में उम्मीद और आंसू समेटे आहिस्तगी से सर उठाया। आप हुक्म करें, मुझे सब मंजूर है। बस मुझे मेरे भाई की जिंदगी चाहिए, उसका मुस्तकबिल चाहिए। माँ बाप के मर जाने के बाद उसने महज एक ख्वाब देखा था। वो कबीर को एक आला इंसान बनता देखना चाहती थी, उसकी हंसती खेलती जिंदगी देखना चाहती थी, और ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को रजामंद थी। चंद लम्हे आलियांशा खामोशी से बैठा उसे तकता रहा, जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो या जैसे उसकी रूह को परख रहा हो। फिर उसने अपने लब खोले और एक गहरी सांस लेकर बोला, जब हम कोई गैंग चलाते हैं और उसके सरबराह बनते हैं, तब हमें एक बीवी चाहिए होती है, एक ऐसी औरत जो हमें कानूनी और ज़ाती तौर पर मुकम्मल करे। माफिया की दुनिया के अपने उसूल होते हैं, और अब ऊपर से मुझ पर भी दबाव है कि अगर मुझे बॉस बनना है तो मुझे शादी करनी होगी। माफिया चलाने के लिए मुझे एक औरत की ज़रूरत है जो हर वक्त मेरे साथ रहे और मुखलिसी से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। मायरा की आंखें हैरत से फैल गई। वो समझी नहीं थी कि ये सब किस जानिब जा रहा है। आलिया ने बात जारी रखी, ये हमारे उसूल हैं मायरा। एक बॉस वही बन सकता है जिसकी ज़ाती ज़िंदगी साफ हो, मुकम्मल हो, और माफिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन पर भरोसा करना बेकार है। कोई ना कोई किसी के साथ रह चुकी है, किसी की आगोश से गुजर चुकी है। कोई भी ऐसी नहीं जो मुकम्मल हो, साफ हो, इज्जतदार हो। और मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को शामिल करूँगा तो एक पाक लड़की को शामिल करूँगा, क्योंकि आज तक माफिया में होने के बावजूद मैंने जिना नहीं किया और ना मैं इस हक में हूँ। वो निहायत संजीदगी से बोल रहा था। मायरा का गला खुश्क होने लगा। वो अभी भी बेयकीनी से उसकी बातें सुन रही थी। आलियान की आवाज़ अब सख्त मगर पुरअसर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल शुदा औरत आए। मैंने हमेशा ऐसी औरत चाही जो हर लिहाज से पाक हो, मजबूत और वफादार हो। और तुम वैसी हो। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारा भाई इस दलदल से बच जाओ, हर शय से महफूज रहो, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मेरी ज़िंदगी में शामिल होना होगा। मायरा फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वक्त जैसे थम गया हो, उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। वो गुमसुम खड़ी थी। लफ्ज उसके लबों तक आकर रुक गए थे। एक लम्हे को तो उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो, मगर नहीं, ये हकीकत थी। वो हकीकत जिसने उसकी तकदीर का दरवाज़ा बदल डाला था। आलियान उसे संजीदगी से देखता रहा, जैसे उसकी हाँ या ना में उसके अगले फैसले की बुनियाद हो। कमरे की फिजा में गहरी खामोशी छाई थी, मगर उस खामोशी के अंदर एक तूफान पनप रहा था। मायरा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों के किनारों पर आंसू मोतियों की मानंद लरज रहे थे। वो अपने वजूद के अंदर एक जंग लड़ रही थी, ज़मीर की, मोहब्बत की, गैरत की, और सबसे बढ़कर अपने भाई के तहफ़्फ़ुज़ की। चंद लम्हे वो साकित खड़ी रही, फिर जैसे हिम्मत जमा की और कपकपाती आवाज़ में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आप अलग दुनिया के इंसान हैं और हम अलग दुनिया के। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी परवरिश मुख्तलिफ माहौल में हुई है। मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? वो वाकई सहम कर बोली थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या बात हो गई। हाँ, उसे अंदाज़ा था आलियान शाह कोई इसी किस्म की शर्त रखेगा, मगर निकाह का सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस इंसान के नाम से भी वो पनाह मांगती थी, उसका नाम हमेशा हमेशा अपने नाम के साथ जोड़ लेना कोई आसान बात नहीं थी। आलियान शाह के चेहरे पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई।
जैसे उसके जवाब की पहले से ही तवक्को हो। वो आराम से सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर बोला, शरीफ खानदान। उसने एक खुश्क हंसी हंसी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद कौन सा खानदान तुम्हारे पीछे रह गया? कौन सा घर है जो तुम्हें अपनाएगा? अगर ये बात बाहर निकल गई कि तुम एक रात मेरे फार्म हाउस पर गुजार चुकी हो। उसने अपने लफ्जों में जहर नहीं छुपाया और ना नरमी, बस हकीकत का आईना बनाकर उसके सामने रख दिया। खैर, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ सच पूछ रहा हूं। शादी करोगी या नहीं? या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई किसी दिन इसी गैंग में रहकर किसी नाकाम डील में गोली का निशाना बन जाए? ये सुनकर मायरा की टांगों से जान निकल गई। वो लड़खड़ाती हुई उसके कदमों में गिर पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर आंखों से बहते आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए बोली, खुदा के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे भाई ने कुछ गलत किया होगा तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन खुदारा हमें छोड़ दें, हमारे हाल पर रहम करें। उसे अब अपने आप पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था कि वो क्लब गई ही क्यों, इतनी पागल क्यों बनी। ना वहां जाती और ना ये तमाशा शुरू होता। आलिया ने नीचे बैठे उस वजूद को सर्द निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई, कोई पशेमानी ना थी। मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूं मायरा। उसकी आवाज में अब बर्फ जैसी ठंडक थी। या तो हाँ कहो या मैं अपने लोगों को कॉल करके तुम्हारे भाई के लिए गोली का बंदोबस्त करवाता हूं। मायरा के लबों से एक घटी घुटी चीख निकली, जैसे कोई सांस अंदर ही घुट जाए। वो जोर जोर से हिचकियां ले रही थी और फिर जैसे अंदर के सारे दरवाजे टूट गए हों। उसने रोते हुए आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, निकाह करूंगी। उसकी आवाज एक फरियाद थी, शिकस्त खोरदा, मजबूर, मगर बेहद सच्ची। कमरे में एक बार फिर सकूत छा गया, मगर अब वो खामोशी एक फैसले की मोहर बन चुकी थी। एक ऐसी मोहर जो मोहब्बत, इज्जत और मासूमियत के खिलाफ जबर, इख्तियार और ताकत की गवाह बन गई। जबकि वो मगरूरियत से मुस्कुरा दिया। उसके पास सब था, इज्जत, दौलत, शोहरत और पावर। वो जो चाहता था पल में हासिल कर लेता था। 2 रोज बाद कमरे की फिजा साकित थी, जिसे दरवाजों तक ने खामोशी ओढ़ रखी हो। पर्दे हल्की हवा से थोड़ा थोड़ा सिरक रहे थे और खिड़की से आती धूप सीधी बिस्तर के किनारे पर पड़ रही थी। मायरा पलंग पर चुपचाप बैठी थी, निगाहें झुकी हुई थी और चेहरे पर निकाह की थकन के साथ साथ अंदरूनी तूफान के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी नजरें खाली थी, जैसे वो अभी तक खुद को यकीन ना दिला पाई हो कि वो क्या कर बैठी है। अचानक दरवाजा जोर से खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। बाजी, उसकी आवाज बुलंद थी, गुस्से से कांपती हुई। मायरा ने सर उठाकर अपने छोटे भाई को देखा। वो 17-18 बरस का खुदसर गुसीला नौजवान था, जिसकी आंखों में अभी तक बचपने की जिद बाकी थी। उसके चेहरे पर हैरत और इश्ताल की मिली जुली कैफियत थी। बाजी, आपने क्या कर दिया? आपने इनसे शादी क्यों की? आपको पता भी है आलियान भाई कौन है? वो कितने खतरनाक हैं? आपने अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगा दिया? मायरा की आंखें अचानक गुस्से से दहकने लगी। वो एक झटके से उठी और आगे बढ़कर कबीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई। चुप रहो। उसकी आवाज कड़कदार और जख्मी शेरनी जैसी थी। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे कबीर। आज वो शख्स मुझ पर हुकूमत कर रहा है, मेरे वजूद पर, मेरे फैसलों पर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने कहा था अगर मैंने उससे निकाह ना किया तो वो तुम्हें एक आजाद जिंदगी कभी नहीं देगा। कबीर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान तो उभरा ही था, मगर बहन की जबान से निकले अल्फाज ने दिल पर गहरा वार किया था। वो चंद लम्हे खामोशी से मायरा को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बाजी, ऐसा कौन करता है? आप जानती भी हैं गैंग के उसूल क्या होते हैं। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं रोक सकता। अगर कोई शख्स गैंग का हिस्सा बने तो उससे पहले एक लीगल एग्रीमेंट होता है। मैंने साइन किया है उस पर। हम वहां से निकल सकते हैं अगर चाहें। आपने मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार बात कर लेती मुझसे। मायरा जैसे चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। उसने हैरत से कबीर को देखा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता।
वो कह रहा था अगर मैंने निकाह ना किया तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी आवाज भर आ गई, लहजा लरजने लगा। उसने अपने भाई की बात को सच मानने से इनकार करना चाहा, लेकिन कबीर की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। कबीर ने गहरी सांस ली और अपनी बहन की तरफ अफसोस भरी निगाह डाली। आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया बाजी, बिना सोचे समझे, सिर्फ खौफ में आकर। ये कहकर वो पलटा और खामोशी से कमरे से बाहर चला गया, पीछे मायरा की साकित शिकस्त खुर्दा जात को छोड़ते हुए, जो बेयकीनी और नदामत के बीच लटकी हुई खड़ी थी, जिसे जमीन ने उसके कदमों तले से अपना सहारा खींच लिया हो। एक हफ्ते बाद दोपहर की धूप मध्यम पड़ चुकी थी। बरामदे में नीम का पेड़ हल्की हल्की छांव बिखेर रहा था। मायरा एक पुराने से लकड़ी के सोफे पर खामोशी से बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। निगाहें कहीं दूर खला में गुम थी, जैसे सोचों के समंदर में डूबी हुई हों। उसके चेहरे पर हफ्ते की थकन, उलझन और गम की एक परछाई थी, जो जैसे उसकी उम्र से ज्यादा बोझ उसके नाजुक वजूद पर डाल चुकी थी। अचानक दरवाजे की कुंडी चुरचुराती हुई खुली। मायरा चौंक कर सीधी हुई और फौरन दरवाजे की तरफ नजरें उठाईं। आलियान शाह अपने मखसूस रोबदार अंदाज में अंदर दाखिल हो रहा था, काले कोट के बटन बंद करते हुए, संजीदगी से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो। उसकी मौजूदगी ने मायरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी। कैसी हो बीवी? उसने तंजिया नरमी से कहा, जैसे एक फातेह अपनी सल्तनत के हिस्से पर नजरें जमाए कह रहा हो। मायरा झट से खड़ी हो गई और घबरा कर बोली, आप यहां क्यों आए हैं? अगर किसी ने आपको देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? आलियान शाह ने एक नजर अतराफ में डाली, फिर बेपरवाह अंदाज में बोला, लोग तो देख भी चुके हैं और सोच भी चुके हैं। खैर, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है। मायरा के चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हो गया। वो थोड़ा पीछे हटी और मजबूत लहजे में बोली, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, और मुझे कबीर ने सब कुछ बता दिया है। आपने मुझे धोखा देकर निकाह किया। ये निकाह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अब आपसे तलाक लेना चाहती हूं। आलिया ने एक जोरदार कहकहा लगाया, जो उस खामोश छोड़े घर में गूंज कर फिजा में लरज सा पैदा कर गया। उसने चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाते कहा, मेरी मासूम बीवी, हम माफिया के लोग अपनी औरतों को तलाक नहीं देते, सीधा कत्ल करते हैं, और जो औरत तलाक का लफ्ज जबान पर लाती है, हम उनका गला दबा देते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी गला दबा दूं? मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घबरा गई, उसकी सांसें तेज चलने लगी। दरसती हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप मुझे डरा रहे हैं। आर्यान का लहजा एकदम नरम पड़ गया, जैसे सांप जहर फेंकने के बाद अपनी चमकदार खाल में वापस सिमट गया हो। देखो मायरा, मुझे देर हो रही है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम जा सकें। मायरा ने उसे चंद लम्हे देखा, जिसे उसकी लहजे की नरमी में छुपी दरिंदगी को भांपने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक वो तेज कदमों से पलटी और गुस्से से पांव पटकती अंदर की तरफ चल दी। पीछे आलियान की निगाहें उसके वजूद पर गड़ी रहीं, जैसे वो जानता हो कि अब वो उसके शिकंजे में से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। लबों पर एक नरम मुस्कुराहट फैली थी। वो बेख्तियार बड़बड़ाया था, बहुत मासूम हो जानम तुम, लेकिन अब सिर्फ मेरी हो। रात का पहरा गहरा होता जा रहा था। आसमान पर चंद सितारे चमक रहे थे और बरामदे की बत्ती की मध्यम रोशनी में सन्नाटा जिसे सिमट कर बैठा हो। आलियान शाह चारपाई पर बैठा, कोहनियों को घुटनों पर टिकाए, हाथों में सिगरेट लिए उसकी राख जमीन पर गिरा रहा था। उसके चेहरे पर बेसब्री की एक झलक थी, जैसे वक्त की सुई उसके सब्र को काट रही हो। तभी घर के अंदर से हल्की सी चाप सुनाई दी और माहिरा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बरामदे में दाखिल हुई। उसने स्याह साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए और हल्के से काजल में उसकी आंखें चमक रही थी। वो हद से ज्यादा हसीन लग रही थी, ऐसी दिलकशी जैसे सन्नाटे में बिजली कूद गई हो। आलियान शाह ने जैसे ही उसे देखा, वो एक लम्हे को मुंजमद सा रह गया। सिगरेट हाथ से छूट कर नीचे गिरा और निगाहें बेख्तियार उसके सरापे पर टिक गईं। वो गोया किसी ख्वाब की हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। चलें, मैं तैयार हूं, मायरा ने नरमी से कहा।
اس کی آواز میں بے نیازی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی انجانی سی امید چھپی ہوئی تھی۔ عالیہ نے بغیر کوئی جواب دیے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی پہلے سے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی کا رخ اب شاہ مینشن کی طرف تھا۔ سڑکوں کی خاموشی میں گاڑی کی گھن گرج سب پر حاوی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر مائرہ نے آہستگی سے نظریں اس پر ڈالتے کہا، آپ نے کبیر کے لیے ایڈمیشن کروایا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے تعلیم دلوائیں گے، ایک اچھی زندگی دیں گے۔ عالیہ نے گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا ایڈمیشن لندن کی بہترین یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ ویزا، فیس، رہائش سب مکمل ہے۔ وہ اگلے ماہ روانہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مائرہ کی طرف دیکھا اور قدرے نرمی سے کہا، تم بے فکر رہو، اپنی بیوی کے بھائی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ مائرہ نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی تھی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، ایک بات کہوں آپ سے؟ عالیہ نے ایک نظر سامنے سڑک پر ڈالی، پھر مختصر سا جواب دیا، کہو۔ کیا ہم دونوں ایک سکون بھری زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ جملہ جیسے گاڑی کے اندر گونج سا گیا۔ عالیان کے ہاتھوں نے اسٹیئرنگ کو سختی سے تھاما۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ یکدم اس نے گاڑی کی بریک پر زور سے پیر رکھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کی آنکھیں اب پوری شدت سے مائرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ جو سن رہا ہے وہ سچ ہے یا محض ایک خواب۔ گاڑی سڑک کے کنارے سنسان مقام پر رکی ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں جیسے رات کے سکوت میں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ کار کے اندر خاموشی کا ایک بھاری لمحہ چھایا ہوا تھا اور عالیان شاہ کی نظریں اب بھی حیرت سے مائرہ کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کو ہلے ہی تھے کہ مائرہ کی آواز نے اس کی بات کو روک دیا۔ میری بات کا مطلب ہے، وہ نرمی سے بولی، آواز میں ایک سنجیدہ مگر نرم لہجہ تھا، کیا ہم دونوں ایک میاں بیوی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے؟ عالیان نے پلکیں جھپکی، جیسے وہ اس کے سوال کی گہرائی کو پرکھ رہا ہو۔ مائرہ نے اپنی بات جاری رکھی، آپ اپنی زندگی کو مجھ سے اور میرے بھائی سے الگ رکھیں۔ آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، مگر مجھے ان پارٹیوں، مافیا کے لوگوں، ان سب چیزوں سے دور رکھیں۔ میں بس ایک پرسکون زندگی چاہتی ہوں، ایک عام سی زندگی۔ کیا ایسا ممکن نہیں؟ عالیان نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شرارت کی جھلک لیے بولا، یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم ایک فیملی کی طرح رہیں، بچے ہوں، ناشتہ ہو، بچوں کا اسکول ہو، شام کو تم میری تھکن اتارو اور میں تمہیں چائے کا کہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مائرہ نے بے اختیار زور سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خواب جیسے چمکنے لگے۔ جی، میری یہ بہت خواہش ہے۔ میں نے بچپن سے امی ابا کو لڑتے دیکھا ہے، ہمیشہ جھگڑتے، ایک دوسرے کو اذیت دیتے۔ دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ جس سے بھی میری شادی ہو اس سے کبھی جھگڑا نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، سنبھالیں۔ میں بس سکون چاہتی ہوں، معمولی سا سکون۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، ایک سادہ سی تمنا، جسے سن کر عالیان کا دل جیسے لمحہ بھر کو نرم پڑ گیا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، ہاں مجھے تمہارا نہیں پتا۔ مائرہ نے ایک پل کو خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، میں راضی ہوں، پورے دل سے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں یکدم روشنی کر دی گئی ہو۔ عالیان نے ہلکا سا کہکہا لگایا جو اس بار طنز یا غرور سے خالی تھا، محض ایک دھیما سا خوشگوار لمس لیے ہوئے۔ اس نے کار کی چابی گھمائی، انجن کی گڑگڑاہٹ نے خاموشی کو چیر دیا اور وہ آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھا لے چلا، جیسے ان کی زندگی ایک نئے موڑ پر داخل ہو گئی ہو، ایک ایسے راستے پر جس پر شاید اب سکون کے کچھ سائے بھی چلنے لگے تھے۔ مینشن کے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی مائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے ایک خواب پھیلا ہوا تھا، اونچی چھتیں، سفید جھاڑ فانوسوں کی چمک، نرم قالینوں کا سکون اور ہر طرف ایسا شاہانہ وقار کہ جیسے وہ کسی محل میں داخل ہو گئی ہو۔ وہ بے اختیار گردن گھما کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ دروازوں پر مہنگی پینٹنگز آویزاں تھیں، کونے میں رکھے قیمتی پھولدان جیسے ماحول کی نرماہٹ میں رنگ بھر رہے تھے۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی
اس کی آواز میں حیرت اور ہلکی سی الجھن واضح تھی۔ آلیان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے کی طرف بڑھتے نرمی سے بولا، یہ میرا اور تمہارا گھر ہے مائرہ۔ وہ دونوں لاؤنج کے نرم چمڑے کے صوفے پر آ کر بیٹھے۔ مائرہ نے پھر سے چاروں طرف دیکھا، جیسے ہر زاویے کو ذہن میں محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ آلیان نے اس کی نگاہوں کو پڑھتے آہستہ سے کہا، میں تمہیں کسی پارٹی میں لے جانے والا تھا، ارادہ وہی تھا، لیکن جب تم تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی، تمہیں دیکھ کر ہی میرا ارادہ بدل گیا۔ مائرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بولا، اتنی حسین بیوی کو میں کیسے ان غیر مردوں کے درمیان لے جا سکتا ہوں؟ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ آنکھ بھر کر اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، کچھ ملتا جلتا غرور، کچھ حفاظت کا جذبہ۔ اور اب تو میری بیوی خود چاہتی ہے کہ ہم ایک پراپر فیملی کی طرح زندگی گزارے۔ وہ رک کر اس کی طرف جھکا، تو اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم ایسی دنیا کا حصہ بنو۔ مائرہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوئی، جیسے اس کی باتوں نے دل کے کسی نرم گوشے کو چھو لیا ہو۔ آلیان نے اس کے چہرے پر پھیلتی نرمی کو دیکھا تو کچھ پل خاموشی اختیار کی، جیسے وہ بھی اس لمحے کو قید کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس دنیا کی برائیوں سے ہمیشہ دور رکھوں۔ میری دنیا خون، طاقت اور دھوکہ ہے، لیکن تم میرے لیے ایک روشنی ہو، اس لیے تمہیں ہمیشہ اپنی آغوش میں چھپا کر رکھوں گا۔ مائرہ نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن جیسے یکدم تیز ہو گئی ہو، مگر آنکھوں میں ایک تسلی کا عکس ابھرا۔ وہ جو کبھی اس رشتے سے خوفزدہ تھی، آج خود اس میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا سکون ڈھونڈنے لگی تھی۔ آلیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور بے اختیار اس پر جھکتا چلا گیا۔ زندگی میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جب آپ کو اپنی انا، اپنی ضد، ہر شے کو مار کر اپنے رشتے کو اہمیت دینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک اجنبی سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، اور ایسا ہی حال مائرہ کا تھا۔ بے شک رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔